नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, चुनाव आयोग और विपक्षी दलों का टकराव इतना बढ़ गया है कि शायद ये पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री ने चुनाव परिणाम मानने से इनकार कर दिया है और इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल नतीजों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ममता बनर्जी ने साफ बोल दिया। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या आप इस्तीफा देने जा रही हैं राज्यपाल के पास, तो ममता बनर्जी ने दो टूक जवाब दे दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। अमूमन क्या होता है, क्या परंपरा होती है कि चुनाव नतीजे आने के बाद जो पहले मुख्यमंत्री होते हैं वो इस्तीफा देने जाते हैं राज्यपाल के पास, उसके बाद नई सरकार का गठन होता है। लेकिन अब सवाल खड़ा ये हो गया है कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो फिर राज्यपाल क्या करेंगे, नई सरकार का गठन क्या होगा, आगे आपको बताएंगे। पहले ममता बनर्जी ने सवाल के जवाब में क्या कहा, जरा सुनिए। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারি নিয়ে যাব, হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট উই ডিডন্ট লুজ দ্য ইলেকশন। ইট ইজ দেয়ার ফোর্সফুল অ্যাটেম্প্ট টু ডিফিট আস। Officially they may, through election commission, can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. हम लोग जैसा फाइट किया इंची में इंची टू इंची, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। और अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच अप कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे। आप हमको बताइए, जब लोगों ने वोट देता है मशीन में, उसका चार्ज, बैटरी चार्ज 40 का नीचे उतर जाता है, लेकिन 1995 कैसे हुआ? कैसे हुआ? आई एम रेजिंग द क्वेश्चन। Sad to say, CEC became the villain of this election to loot the democratic rights of the people and to loot the EVM machine. Can you tell me that after voting EVM machine, 80 to 95% is the charge? How it is possible? Before 2 days of election, by please, আপনারা একটু কথা কম বলুন। Before 2 days of election, they started arresting our people like anything. They started raid in everywhere, and they changed all the IC to OC to SDO to DM to IPS, all IPS, IS, WBCS, WBPS, all they change. And they selected from their party, and BJP play the game directly with the election commission. It's a betting, you can say, the got up betting between BJP and the election commission. We fought against the all machinery where Prime Minister and Home Minister is also involved. Directly interference. And please remember that police is totally inactive. My official agents are not allowed. I am not allowed. I went inside for few minutes. They kicked me in my belly. They kicked me in my backside. And they abused, physically manhandled, assaulted. And you cannot imagine what happened, because that time CCTV was off. So far I know, I have seen the CCTV footage from inside the room. Then I was sitting there, I said, unless and until the counting is started, the normalcy is restored, I will sit here as a candidate. I have seen the data bank area, all the BJP candidate and with 200 goons, they are operating the data. Then they just thrust me, thrown me out from the counting station. धक्का देके देके मार के निकाला। As a woman, I feel it is not only the insultation. I am as a human being, how they misbehave with me.
So I can guess the other candidates how they are being tortured and the workers. तो ममता बनर्जी ने चुनाव परिणाम मानने से इनकार कर दिया है और यह आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने बेईमानी करके टीएमसी को हराया है। बीजेपी, पीएम मोदी और चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सबका नाम लेते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव लूटा गया है, 100 से ज्यादा सीटों पर बेईमानी की गई है और मैं इस चुनाव परिणाम को नहीं मानती। चुनाव आयोग के खिलाफ देश भर में आंदोलन करने का ऐलान किया है ममता बनर्जी ने। लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं देती हैं तो अब राज्यपाल के पास क्या ऑप्शन बचते हैं? नई सरकार का गठन कैसे होगा? क्या कहते हैं नियम? तो नियम ये कहते हैं कि चुनाव का परिणाम मान्य रहेगा। चुनाव आयोग जब नतीजे घोषित कर देता है और जीत का प्रमाण पत्र दे देता है तो वही अंतिम माना जाता है। जब तक कोई अदालत इस पर रोक नहीं लगाती तब तक उसी के अनुसार आगे की प्रक्रिया चलेगी। विधानसभा का कार्यकाल खत्म होना सबसे बड़ा फैक्टर है। विधानसभा का कार्यकाल पूरा होते ही पुरानी सरकार अपने आप खत्म मानी जाती है। इसके बाद नई विधानसभा और नई सरकार बनना तय होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की सलाह दे सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री फिर भी मना करें तो राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री पद पर बने रहना राज्यपाल की मंजूरी पर निर्भर करता है। नई सरकार बनने में कोई रुकावट नहीं है। भले ही पुराना मुख्यमंत्री इस्तीफा ना दे, नई विधानसभा बनने के बाद नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। शपथ ग्रहण भी सामान्य तरीके से हो सकता है। चुनाव को चुनौती देने का अधिकार अलग है। अगर ममता बनर्जी चुनाव नहीं मानती हैं, कोर्ट जाती हैं, तो फिर मामला पैरेलल चलता रहेगा, लेकिन सरकार के गठन में परेशानी नहीं आएगी। अगर कोई चुनाव परिणाम से असंतुष्ट है तो वो कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया अलग चलती है और इसे तुरंत सरकार बनने पर कोई असर नहीं होता। तो ये नियम कहते हैं 7 मई को वैसे भी विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो ममता बनर्जी इस्तीफा दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बात से फर्क जरूर पड़ता है कि चुनाव आयोग पर आखिरकार विपक्षी दलों का इतना भरोसा क्यों उठ गया है। सत्ताधारी दल के अलावा जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे वो किसी भी विचारधारा के क्यों ना हो, चाहे देश के किसी हिस्से में क्यों ना हो, सब चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर अगर सवाल उठा रहे हैं तो चुनाव आयोग को आत्ममंथन करने की जरूरत है। लेकिन क्या आत्ममंथन किया जाएगा? जो सवाल उठाए जा रहे कि लाखों मतदाता पश्चिम बंगाल में मतदान के अधिकार से वंचित हो गए, 27 लाख लोगों की सुनवाई तक नहीं हो पाई, जिन्होंने अपील की थी कि हमारा वोट गलत कटा है, उसके बावजूद चुनाव हुए, तो उसके परिणाम पर अब विपक्षी नेता कहते हैं कि एसआईआर से पूरा खेल सेट किया गया बीजेपी के लिए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला है, राहुल गांधी ने भी उनका समर्थन किया है, अखिलेश यादव ने समर्थन किया है, केजरीवाल ने समर्थन किया है, तो तमाम दल चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग अगर बीजेपी के साथ मिलकर गेम करेगा तो लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा। ये विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।